مزید موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں گزشتہ رات چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے بعد لاہور کا جو موسم ہے وہ ایک مرتبہ پھر خوشگوار ہو چکا ہے۔ صبح سویرے لاہور میں جہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سورج بھی نکلا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث لاہور کا جو موسم ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 43% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ وہیں پر لاہور میں 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جو لاہور کے موسم کو جہاں پر خوشگوار بنا رہی تو وہیں پر ٹھنڈی ہواؤں کے باعث ہلکی ٹھنڈک بھی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہور کے افق پر تاحال جو ہے وہ کالے بادل موجود ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہنا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ دن کے اوقات میں بھی جو ہے وہ بارش پڑ سکتی ہے، اور جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ تاہم جو آئندہ ہفتے جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ لاہور میں اب دوبارہ سے جو ہے کل سے دوبارہ پھر گرمی کی شدت کا آغاز ہوگا اور دن بدن درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی میں کورم کے معاملے پر دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ اپوزیشن رکن اقبال خٹک بولے، ایوان میں ارکان کی غیر حاضری پر تشویش ہے۔ صوبائی وزیر رانا اقبال کا کہنا تھا ایوان میں ارکان کی عدم موجودگی کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ایوان میں آپریشن بنیان المرصوص کی سالگرہ پر فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 25 منٹ کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے امجد علی جاوید نے کہا کہ ایک ہی سوال کو بار بار مختلف ناموں سے جمع کروانا وقت کا ضیاع ہے۔ اس ہاؤس کا وقت قیمتی ہے، کوئی اگر اس پہ کوئی کام کرنا ہے تو میری تو لا منسٹر صاحب سے ہے کہ ایک ہی سوال کا ایک مرتبہ جواب دے دیں، چیزیں وہی ہیں، کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں۔ اس میں تو مختلف ممبرز کے نہیں ہوں گے سوال سر، نام ممبروں کے بدلے ہیں، ایک ہی سوال ہے، نام اور ڈویژن بدل کے کہ اس میں کتنے ملازم ہیں، دفتر کہاں واقع ہے، کام کیا کرتے ہیں، یہ 4 سوال جوز ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے ریمارکس دیے کہ وزراء کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ صوبائی وزیر قانون رانا اقبال نے کہا کہ میں مکمل تیاری کے ساتھ ایوان میں آیا ہوں اور عوامی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ آپ کا خادم پوری طرح تیاری کر کے آیا تھا۔ جی رانا صاحب، ہمیں بالکل، آپ انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ بالکل تیاری کر کے۔ اپوزیشن رکن اقبال خٹک نے کہا کہ ایوان میں کم حاضری ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنے ممبرز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آبزرویشن جو ہے نا ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چھاپا جو ہے نا وہ چل رہا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا اپنے جو دوسرے بھائی ہیں کہ ذرا اپنے والوں کو بھی تو دیکھو نا، انہوں نے کون سا چھاپا پڑھا ہے؟ جو اپنے ممبر ہیں ان کے سوال کو بھی تو پڑھو کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، الزام تو آپ لگا رہے ہو۔ ایوان میں مجموعی طور پر 4 قراردادیں منظور۔ آپریشن بنیان مرصوص کی سالگرہ پر پاک فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قراردادوں میں بڑھتی آبادی پر قابو پانے، وسائل کے تحفظ اور خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ پر زور، اور خاتون سائیکلسٹ محتر منظور کو جدید سائیکلنگ آلات، تربیت اور کوچنگ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان حکومت پنجاب سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ محتر منظور کی حالیہ شاندار کامیابیوں کے پیش نظر حکومت انہیں اپنی مستقل سرپرستی میں لے، نیز آئندہ آنے والے ملکی و بین الاقوامی مقابلوں کی بھرپور تیاری کے لیے انہیں بہترین ٹریننگ و جدید ترین آلات اور کوچنگ کی تمام ضروری سہولیات سرکاری سطح پر فراہم کی جائیں تاکہ یہ کھلاڑی اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں حکومتی رکن میاں محمد منیر نے 2 نجی یونیورسٹیوں کے بل پیش کر دیے، جبکہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد پینل آف چیئر پرسن سمیع اللہ خان نے ایوان کا اجلاس بروز بدھ تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ اور کم عمری کی شادیاں روکنے کے لیے اہم قانون سازی۔ پنجاب اسمبلی نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی عائد ہوگی۔ خلاف ورزی پر 7 سال تک قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی۔
पंजाब असम्बली ने कम उम्री की शादी की रोकथाम के लिए मुसव्वदा कानून कसरत राय से मंजूर कर लिया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल के तहत जबरी शादी की सूरत में अदालत मुतासरा बच्चे या बच्ची की देखभाल, तालीम और सेहत और तंदुरुस्ती के एहतमाम का तयन करेगी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन की उम्र शादी के वक्त 18 साल होना लाजिम करार। कम उम्र बच्चों से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बच्चों से शादी के केसेस को ज्यादती के जुमरे में शुमार करते हुए 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार, वालदैन या सरपरस्त भी सजाओं की जद में आएंगे। बच्चों को दूसरे सूबे ले जाकर शादी करवाने वालों के लिए भी सख्त सजाएं मुकर्रर। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे, जिसके बाद 1929 का पुराना कानून खत्म हो जाएगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लॉकडाउन में जुज़वी नरमी का मामला अवामी दबाव कम कर गया। हुकूमत ने जिम, फिटनेस सेंटर्स और इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर्स का वक्त बढ़ाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक जिम और फिटनेस सेंटर्स को रात 10 बजे तक इजाज़त या पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत को जिम के औकात कार बढ़ाने की लॉकडाउन से इस्तिस्ना की तजवीज़ दी थी। पंजाब हुकूमत ने ज़िला इंतज़ामिया की तजावीज़ पर रज़ा अरबों रुपये का बजट होने के बावजूद मियो अस्पताल के हालात ना बदले। OPD में अद्वियात के 6 काउंटर्स में से 3 बंद। मरीजों को अद्वियात के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। तवील लाइन में लगी मरीजा शदीद गर्मी के बायस गिरकर बेहोश हो गई। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। की बड़ी इलाजगाह मियो अस्पताल के हालात अरबों रुपए का बजट मिलने के बावजूद जूं के तूं। OPD में अद्वियात के 6 काउंटर्स में से 3 बंद। सीनियर सिटीजन काउंटर भी गैर फाल। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान OPD की लाइन में खड़ी मरीजा बेहोश हो गई। बेहोश मरीजा सड़क पर काफी देर पड़ी रही, जिसे बर वक्त तिबी इमदाद न मिल सकी। लवाहिकीन ने अपनी मदद आप के तहत पानी के छींटे मारकर होश दिलाया। OPD में पंखे भी खराब, मरीज अजियत में मुब्तला। बेशतर मरीजों का कहना है कि वो बगैर अद्वियात और इलाज के ही घरों को वापस जाने पर मजबूर हैं। लाइन च लग के पागल हो गए। हार्ट का मरीज है, दवाई मिलनी मुश्किल हुई है इतने हर पासे। देखो तो सुबह 8 बजे का मैं आया इतने, देर तक दवाई नहीं मिली किसी पासे। 4 घंटे हो गए खलोते ते बाद कहते ऑनलाइन मिलेंगियाँ। ऑनलाइन ते जाओ तो कहते ये बाहर मिलेंगी। ठीक है, इन्हें कोई दवाई होती है फिर भी नहीं देंगे। MS मियो अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर रहमान ने कहा कि अस्पताल पर मरीजों का गैर मामूली दबाव बढ़ गया। हालात की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। OPD के तमाम काउंटर्स फाल किए जा रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि मियो अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और इलाज के मामलात को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि DHQ और THQ सतह पर LHV दाखिलों के लिए दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल शफाफ अंदाज में जल्द मुकम्मल किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स के मामलात को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत और आबादी और दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। सूबे भर से CEOs ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में DHQ और THQ सतह पर LHV दाखिलों के लिए स्क्रूटनी के अमल का भी जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि तकरीबन 45,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मेरिट की बुनियाद पर 6,900 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सूबे भर के 69 मराकज़ सेहत पर तालिबात को तरबियत फराहम की जाएगी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इस मनसूबे की कामयाबी से कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट को तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत मैसर आएगी। महंगी बिजली की 27 शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। नापरा ने 25 किलोवाट से कम सोलर सेटअप लगाने पर लाइसेंस फीस खत्म कर दी। नापरा ने 25 किलोवाट से कम सोलर सेटअप के लिए लाइसेंस फीस के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि 25 किलोवाट से ज़ायद सोलर सिस्टम पर फ़ी किलोवाट 1,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर। 25 किलोवाट से ज़ायद सोलर लाइसेंस लेने पर एक ही बार फीस अदा करना होगी। नापरा की जानिब से इससे कबल 25 किलोवाट से कम सोलर सिस्टम का लाइसेंस लेने पर भी फीस मुकर्रर की गई थी। वज़ारत पावर डिवीजन की जानिब से नापरा को इस मामले पर नजरसानी का कहा गया था। कौमी एयरलाइन की निजकारी में बड़ी पेशरफ। निजी शोबे ने मुकम्मल कंट्रोल संभालने की राह हमवार कर ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में 100% शेयर्स हासिल करने के लिए अहम मरहला मुकम्मल कर लिया। अरबों रुपए की बैंकिंग गारंटी जमा। मई में इंतजामी कंट्रोल मुंतकली का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखते हैं। कौमी एयरलाइन के निजकारी के अमल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 100% शेयर्स हासिल करने के लिए रकम की अदायगी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कंसोर्शियम ने मजीद 25% शेयर्स की खरीदारी के लिए दरकार रकम जमा करा दी है, जिसके बाद मलकियत की मुंतकली का अमल मुकम्मल हो चुका है। 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा कराना मुआहदे का अहम हिस्सा था, जो अब मुकम्मल कर लिया गया।
कहना है कि ये कंसोर्शियम मुल्क के बड़े कारोबारी ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिनमें फौजी फर्टिलाइजर, लेक सिटी, फातिमा ग्रुप, आरिफ हबीब लिमिटेड, सिटी स्कूल और AKD ग्रुप शामिल हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में वसी तजुर्बा रखते हैं। शहर में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त के लिए लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी पर चलान का फैसला तो हो गया, मगर रोड्स पर लेन ही गायब है। LD और टीपा की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। अहम शाहराहें ताहाल बगैर मार्किंग के हैं। बढ़ता ट्रैफिक दबाव और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती हिकमत अमली को कड़ी आजमाइश में ले आया। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती का फैसला नए तनाज़े को जन्म दे रहा है। पंजाब हुकूमत ने लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी पर चालान का इंदिया दे दिया, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ इस फैसले के बरक्स दिखाई देते हैं। शहर की मुतअद्दिद अहम शाहराहें आज भी वाज़ेह लेन मार्किंग से महरूम हैं, जिसके बायस शहरियों में बेचैनी और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक LDA और टीपा की जानिब से लेन मार्किंग के मंसूबे हर साल तैयार किए जाते हैं, मगर अमल दरामद अक्सर ताख़ीर का शिकार रहता है। कभी स्मॉग की सूरत हाल को जवाज बनाया जाता है, तो कभी हुकूमती तरजीह बदलने से ये मंसूबे पसे मंजर में चले जाते हैं। बड़ी शाहराएं जिनमें फेरोजपुर रोड, कैनाल रोड, रायविंड रोड और मुल्तान रोड शामिल हैं, पर कई मकामात पर लेन और लाइन से महरूम दिखाई देती हैं। इसी तरह हरबंसपुरा से BRB कैनाल तक का हिस्सा और सब्जाजार ब्लू वार्ड भी मुकम्मल मार्किंग न होने की मिसाल बन चुके हैं, जहां ट्रैफिक की रवानी अक्सर मुतासिर रहती है। आदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में सड़कों का मजमूई जाल 14,069 किलोमीटर तक फैल चुका है। इनमें मकामी सड़कें 12,391 किलोमीटर, सेकेंडरी रोड्स 1,217 किलोमीटर, जबकि प्राइमरी सड़कें महज 300। दिलचस्प अम्र यह है कि 4 लेन सड़कों का तनासुब सिर्फ 5% है, जबकि 60% सड़कें सिंगल लेन पर मुश्तमिल हैं, जो बढ़ते ट्रैफिक दबाव के सामने नाकाम है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर रिंग रोड बलोकीता राजा जंग इंटरचेंज कसूर रोड के 18.5 किलोमीटर तवील नए सेक्शन का नक्शा मंजर-ए-आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक नया सेक्शन SL 20 बलोकी इंटरचेंज से शुरू होकर राजा जंग कसूर रायविंड रोड पर खत्म होता है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर रिंग रोड का 18.5 किलोमीटर नए सेक्शन बल्लोकीता राजा जंग का नक्शा जारी। ज़राए के मुताबिक रिंग रोड SL 20 बल्लोकी इंटरचेंज कसूर रोड से मुंसलिक राजा जंग तक तोसी होगी। नए सेक्शन में 3 मुख्तलिफ रो राजा जंग वाला हिस्सा 100 मीटर चौड़ा होगा। जाती उम्रा रायविंड के मकीनों के लिए रिंग रोड तक बराह रास्त रसाई। बल्लोकी सुवेयासल रोड और कसूर रायविंड रोड पर 3 नए इंटरचेंज बनेंगे। बल्लोकी से राजा जंग तक 18.5 किलोमीटर तवील नया रिंग रोड सेक्शन मंजूर किया गया है। ज़राए के मुताबिक सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट और रायविंड रोड को रिंग रोड नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया जाएगा। हुकाम रिंग रोड के मुताबिक SL 20 रिंग रोड से जुनूबी लाहौर और कसूर रोड की ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत 51 शहरों में काम जारी है। महकमा बल्दियात ने शफाफ टेंडरिंग के जरिए मुख्तलिफ स्कीमों में 28 अरब रुपए की बचत की। शहरों के लिए 55 में से 40 सक्शन मशीनों का ऑर्डर दे दिया गया। 55 जेटिंग मशीनों और 100 डी वाटरिंग सेट्स की खरीदारी का अमल भी जारी है। PDP के तहत 77 डीसेल्टिंग मशीनों की खरीदारी भी आखिरी मराहिल में है। जदीद मशीनों के इंतजाम से अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर बल्दियात का मज़ीद कहना था, रोड्स किनारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक से बरसाती पानी की फौरी निकासी मुमकिन होगी। 61 डिस्पोजल स्टेशन की बहाली के साथ 56 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। माल रोड की 104 तारीखी इमारतों की बहाली का मंसूबा लटक गया। 1 अरब रुपए के फंड जारी ना हो सके। अफसरान ने फंड्स ना मिलने पर बहाली के अखराजात बिल्डिंग मालिकान पर डाल दिए। 10 इमारतों को नोटिस जारी। तारीखी इमारतों के मालिकान को 7 रोज में बहाली का अमल शुरू करने का हुक्म दे दिया। मॉल रोड लाहौर पर वाक़े तारीखी इमारतों की ताज़ीन व आराइश का मिशन ताहाल अधूरा। माली साल खत्म होने में 2 माह रह गए। 1 अरब रुपए में से 1 पाई भी जारी न हो सकी। तारीखी इमारतों की बहाली के लिए 80 करोड़ रुपए, जबकि मॉल रोड की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए दरकार हैं। अफसरान ने फंड्स न मिलने पर बहाली के अखराजात बिल्डिंग मालिकान पर डाल दिए। 10 इमारतों को नोटिस जारी। तारीखी इमारतों के मालिकान को 7 रोज में बहाली का अमल शुरू करने का हुक्म, वरना कानूनी कार्रवाई होगी।
नोटिस के साथ खस्ताहाल इमारतों की तस्वीर फाइलों तक महदूद, वाइट वॉश न हो सका। मंसूबे के तहत बरतानवी अहद की इमारतों की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। तारीखी इमारतों का बैरूनी फसाड यकसां बनाया जाएगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी तारीखी विरसे की बहाली में जिले इंतजामिया को तकनीकी मदद फराहम करेगी। सराय के मुताबिक गुलाम रसूल बिल्डिंग, शादीन मंजिल, अहमद मेंशन समेत 10 कदीमी इमारतों की बहाली पहले मरहले में शामिल है। मालिकान अपनी जेब से मॉल रोड का तारीखी हुस्न बहाल करेंगे। जबकि लाहौर में निकासियाब का बड़ा मंसूबा फिर फंड्स का मुंतज़िर। हाजी कैंप स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट 95% मुकम्मल होने के बावजूद ताख़ीर का शिकार। अरबों रुपए के मंसूबे के लिए बजट में महज 50 लाख मुख्तस किए गए। लाहौर में मानसून बारिशों से कबल नकासियाब का अहम मंसूबा ताखीर का शिकार। हाजी कैंप स्ट्रॉम वाटर ड्रेन मंसूबे को बजट में खातिर ख्वाह फंड्स न मिल सके। हाजी कैंप से दरियारावे तक बिछाई जाने वाली ड्रेन का 95% काम मुकम्मल हो चुका। बाकी मानदा काम के लिए मजीद 45 करोड़ रुपए दरकार, जबकि बजट में सिर्फ 50 लाख रुपए रखे गए। जराये के मुताबिक ड्रेन मंसूबे की नजरसानी शुदा लागत 3 अरब 10 करोड़ 84 लाख रुपए तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता माली साल में भी मुकम्मल फंड फराम न किए जाने के बायस तरक्याती काम की रफ्तार मुतासिर रही। जराये के मुताबिक वासिक के मुताबिक तरक्याती मंसूबे महदूद फंडिंग के बायस सुस्त रवै का शिकार हैं। यही सूरत हाल हाजी कैंप ड्रेन के साथ भी पेश आ रही है, जिसे अब 3 साल तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। हाजी कैंप स्ट्रॉम वाटर ड्रेन मंसूबा लाहौर में तवील तरीन अरसे तक जेर इल्तिवा रहने वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुका, जो मानसून से कबल नामुकम्मल इंतजामी तैयारियों पर भी सवाल उठा रहा है। खबर है कि पंजाब के रजिस्टर्ड वर्कर्स को 720 मुफ्त फ्लैट्स देने का प्लान। कुरंतासी को 4 माह गुजर गए, लेकिन कामयाब उम्मीदवारों को फ्लैट्स ताहाल फराहम न किए जा सके। महकमा लेबर ने एक बार फिर 1 मई को फ्लैट्स देने का ऐलान कर दिया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। पंजाब के रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए कुरानंदाजी के जरिए 720 मुफ्त फ्लैट्स फाइनल कर लिए गए, मगर ताहाल फ्लैट्स वर्कर्स के हवाले न किए जा सके। सराय के मुताबिक फ्लैट्स की अलॉटमेंट के साथ कुछ इजाफी शराइत भी आयद की गयी, जिस पर मजदूरों की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया गया। फ्लैट के उसूल के लिए 5000 रुपए फीस मुकर्रर की गई और दरखास्त फॉर्म कसूर में जमा करवाने की हिदायत की गई। वर्कर्स के एहतजाज पर हुक्काम ने शराइत वापस ले ली। वर्कर्स रहनुमा बिलाल सियाल का कहना है कि अब महकमा लेबर की जानिब से कहा गया है कि 1 मई यौम मजदूर पर फ्लैट्स की चाबियां हमारे हवाले की जाएंगी। गवर्नमेंट ने जो वर्कर्स को जो फ्लैट्स दिए हैं वो काफ़ी इन्होंने ताख़ीर से देने का ऐलान किया है। हालांकि कुरानंदाजी जो है वो जनवरी में हो गई थी, मगर अब शुक्र है कि ये पता चल रहा है कि 1 मई वाले दिन जो है इन वर्कर्स को जो है, जो बेवा और माजूर जो वर्कर्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो चाबियां दे रही है। वर्कर्स रहनुमाओं के मुताबिक महकमा लेबर ने अब 1 मई को फ्लैट्स का कब्जा देने का ऐलान किया है, ताहम मजदूर इस वादे पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।